Hello students, good morning everyone, and you are welcome in online smart classes conducted by St. James School and College Library. I, Mr. Rajesh Trivedi, delivered all topics related to solid state of chemistry of class 12, which is solid state. In solid state, first of all, everybody know what is solid. In previous classes, you studied solid and it compared with liquid and gases. Some properties of solid like solids are incompressible. Solids have less intermolecular space. Strong intermolecular attraction force lies between constituent particles of solids. Shape and volume of solids are fixed. Particles of solids are densely packed, and so on. So these topics are studied in previous classes. Here, solids are differentiated into two parts. They are classified into two parts: amorphous solids and crystalline solids. In case of amorphous solid, constituent particles arranged in a random way. But in case of crystalline solids, constituent particles arranged in a regular way. Due to this, its geometry is definite and its geometry is not definite. Due to this, due to regularly arrangement, geometry definite. Melting points are nature anisotropic and pure solids. But due to randomly arrangement, geometry not definite. Melting point not solid, isotropic, and pseudo solid are superposed. Okay. Next, soft melting point means. Soft melting point means at a particular point all solid become melt. But in this case, first of all, solid becomes softened and then melt. That is at no any definite point where in which amorphous solids become melt. Next is anisotropic. Anisotropic means when we take diamond, light fall an incident on diamond, different radiations releases from the diamond in different directions. The intensity of each radiation is different. Due to this, diamond shows blinking. If intensity of radiated radiations are same, तो blinking property not shown by diamond. मीन्स ये होगा कि डायमंड पर अगर कोई लाइट इंसिडेंट कराई जाती है और अगर इससे रेडिएशंस निकलती हैं, सारी रेडिएशंस की इंटेंसिटी अगर डिफरेंट होगी तो ये आपको ब्लिंक करता हुआ दिखेगा. तो जब इंटेंसिटी सारी रेडिएशंस की डिफरेंट होगी तो आप क्या बोलोगे? आयनाइजेशन. लेकिन अगर सोचो कि यहीं पे जैसे मान लो हम चॉक लेते हैं, चॉक पे लाइट इंसिडेंट कराते हैं, तो इससे जो रेडिएशन निकलेंगी उन सब की इंटेंसिटी सेम होगी. सो इट इज कॉल्ड आइसो एंड आइसो ये दोनों. ट्रू सॉलिड्स एंड स्यूडो सॉलिड्स. ट्रू सॉलिड्स में कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं, बट स्यूडो सॉलिड्स के केस में सम फ्लूइडिटी अकर्स. It is explained with the following example. We observe window pan of old buildings. Bottom end of this pan is thicker with the comparison of upper. अगर किसी पुराने बिल्डिंग का विंडो ग्लास करें और उसको नीचे से ऑब्जर्व करें तो नीचे वाला हिस्सा आपको थोड़ा सा थिकर फील होगा और ऊपर वाला हिस्सा जो होगा थिनर. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ग्लास की जो आउटर एंड इनर सरफेस होती है वो कूल हो जाती है, लेकिन जो बीच वाली मिडिल लेयर्स होती हैं उनमें सम फ्लूइडिटी अकर्स. इसका मतलब अंदर ही अंदर इनविजिबल फ्लूइडिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से लोअर हिस्सा थिकर हो जाता है विद कंपैरिजन ऑफ अपर पोर्शन. ये तो फिर क्या अनलाइक लिक्विड्स में, लिक्विड्स में तो फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें फ्लूइडिटी होती है लेकिन इनविजिबल टाइप, वेरी स्लो टाइप. तो यहाँ आपने क्या लिखा? अनलाइक लिक्विड्स. amorphous solids have very slow tendency to flow, are
called superfood liquids. Example, glass pans of old buildings are found to be thicker at bottom, showing some fluidity purchased by glass. Okay. Next is types of crystalline solids. Types of crystalline solids means ये solid first of all divided into two parts, amorphous and crystalline. And crystalline solids are classified into four groups: ionic solids, covalent solids, metallic solids, and molecular solids. अब ionic solids में आपको कौन सा एग्जांपल स्टडी करना है? NaCl. कोवैलेंट सॉलिड्स में आपको क्या स्टडी करना है? डायमंड एंड ग्रेफाइट. मेटालिक सॉलिड्स में आपको कॉपर स्टडी करना है. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आपको ये फोर पार्ट्स तो थ्री पार्ट्स है ना, तो थ्री पार्ट्स में पहला पार्ट है उसमें क्या स्टडी करना है? ड्राई आइस. मींस फॉलोइंग फोर एग्जांपल्स आपको स्टडी करने हैं: NaCl, डायमंड एंड ग्रेफाइट, कॉपर, ड्राई आइस. इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस लिखने हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज आयनिक सॉलिड्स. एग्जांपल इज NaCl. ब्रैकेट में क्या लिखा है देखिए क्या लिखा है? आयनिक सॉलिड्स. तो ये NaCl का स्ट्रक्चर है. अब NaCl में क्रिस्टल है, क्रिस्टल में ये पार्टिकल्स होते हैं. इन पार्टिकल्स को आप क्या कह सकते हो? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. ओके, तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो या तो Na पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा? Cl नेगेटिव. Na पॉजिटिव या फिर Cl नेगेटिव. यानी कैटायन एंड एनायन. तो आप समझ जाओगे ये ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है. यानी आयनिक सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से आयनिक सॉलिड बना होगा. जिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से आयनिक सॉलिड बनते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैं. नेक्स्ट ऑब्लिक करके ये लिखा हुआ है कि विच टाइप ऑफ फोर्स अकर्स बिटवीन दीज. यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सा फोर्स है जो इनको होल्ड करके रखता है. तो आपने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इट इज आल्सो नोन एज कूलम्बिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स occurs between positive and negative ions in case of ionic solids. Next is covalent solids. कोवेलेंट सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो एटम्स होंगे. जबकि आपने इसमें देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? एटम्स होंगे. एटम्स ऑफ वन आर मोर काइंड. तो मुझे वन काइंड का पढ़ना है. वन काइंड में क्या है? जैसे डायमंड एंड ग्रेफाइट. डायमंड और ग्रेफाइट. डायमंड में केवल कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी केवल कार्बन होता है. इसका मतलब डायमंड एंड ग्रेफाइट both consist of only single type of atom called carbon. Diamond और graphite केवल single type के atom से बने होते हैं जो कि कौन है? कार्बन. Covalent constituent particles of covalent solids are atoms of one or more kind. One kind का तो मतलब बता दिया कि in case of diamond and graphite only carbon are found. बट मोर काइंड में आप ले सकते हैं जैसे SiO2. SiO2 इज अनदर एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड. SiO2 मींस Si भी है O भी है. तो आप बताइए मोर काइंड हो गए. तो वन काइंड या मोर काइंड. वन काइंड का एग्जांपल क्या होगा? डायमंड एंड ग्रेफाइट. क्योंकि इन केस ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट ओनली कार्बन आर फाउंड. बट इन केस ऑफ SiO2 यानी सिलिकॉन तो मोर देन वन, दैट इज टू टाइप. Which force hold these particles? कौन सा फोर्स यहाँ पे लिखा? कोवेलेंट बॉन्ड फोर्स. तो इन केस ऑफ कोवेलेंट सॉलिड constituent particles is atom. और which type of force hold these particles? Covalent bond force. Next is metallic solids. Metallic solids example copper है. अब इसके constituent particle क्या हैं? इसके constituent particles आप देखिए means like that है copper, 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 copper. Okay, copper. The copper ions. Copper ions are formed when these losses one valence electron. जब ये
जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो कॉपर आयंस हैं वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में पड़ेगा। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, उनके बीच में कौन पड़ा हुआ कॉपर है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया, पॉजिटिव आयंस एंड कॉपर आयंस इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, ये कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल जब अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो मेटालिक सॉलिड्स में कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है, पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के समूह में कॉपर आयंस इन्वर्टेड होते हैं एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर। एंड दिस टाइप ऑफ फोर्स attracted these particles or these constituent particles to electrical attraction. Next is molecular solids. Molecular solids में non-polar, polar and hydrogen bonded. Non-polar में example आपको dry ice. Non-polar, polar and hydrogen bonded सबके constituent particles कौन है, molecules, लेकिन फोर्स सब में अलग अलग। non-polar molecular solids में constituent particle molecules and which type of force attracted these, the dispersion or London force। dispersion or London force ये ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया क्योंकि ये सब आपके क्वेश्चंस हैं। dispersion force, London force, इसमें डायपोल सारे फोर्सेस एक्सप्लेन हैं क्लास 11 इन गैसेस स्टेट में सारे फोर्सेस आपको एक्सप्लेन किए गए थे। लंदन फोर्स, वॉन डेर वाल्स फोर्स, डिवाई फोर्स, डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल एंड नेक्स्ट। तो type of crystalline solid clear, 4 types, examples are these, constituent particles and which type of force attracted these, तो ये लिखे हैं। next is what is unit cell। unit cell क्या होता है, आप इस क्रिस्टल को गौर से देखें। इस क्रिस्टल को देखने के बाद पता लगता है कि अगर हम इतने पोर्शन को आपको डिटेल करके दिखाएं, लगता है कि इस क्रिस्टल का एक छोटा सा पोर्शन एक क्यूब हो गया, इसका पता नहीं लगा। तो यानी किसी क्रिस्टल का जो स्मॉल पीस होता है या स्मॉल क्यूब होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो आपको क्या लिखना है कि इट मे बी डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट ब्लॉक। दिस ब्लॉक रिवाइज अगेन एंड अगेन। इसका मतलब all crystalline solid is made up of such type of repeated units. It may be defined as a smallest block which when repeated in different directions produce the entire crystal। ये जो छोटा ब्लॉक है डिफरेंट डायरेक्शंस में अरेंज हो करके होल स्ट्रक्चर को बनाता है। तो स्मॉलेस्ट ब्लॉक ऑफ एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड कॉल्ड यूनिट सेल। किसी बड़े ब्लॉक का स्मॉल यूनिट जो है वो यूनिट सेल कहलाता है। What types of unit cell? Unit cell कितने टाइप्स के होते हैं, तो unit cells फॉलोइंग 4 टाइप्स के होते हैं। which are categorized into 2 groups। होते हैं 4 टाइप्स, कैटेगराइज 2 में किया गया है क्योंकि सेकंड वाले में 3 आते हैं। तो 1, 2, 3 and 4 टाइप्स ऑफ unit cells are found। फर्स्ट टाइप इज primitive or simple or basic unit cell। सेकंड centered unit cell। सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर यानी कम्स अंडर सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, साइड या इन सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, अभी ब्रैकेट में क्या लिखा हो समझने में बहुत जरूरी है। व्हाट इज यूनिट सेल, हम ऐसे कह सकते हैं कि यूनिट सेल ये है, लेकिन आपको दिखाया है कि होल क्रिस्टल का जो स्मॉल ब्लॉक होगा कॉल्ड यूनिट सेल। अब आपको इसमें क्या करना है कि यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं। आपको बताया कि 4 टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड साइड सेंटर्ड। ओके, तो हमने आगे होते क्या हैं चले देखते हैं कि करते हैं प्रिमिटिव केस में। इन केस ऑफ प्रिमिटिव
देखिए कैसे बनाया मैंने। पहले एक सिंपल सा क्यूब बोर्ड में बनाने के लिए आता है, अब ऐसे बनाए। नेक्स्ट इज ऐसे हो गया। अब इसमें आप एक कमरे का एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो एक क्यूब है, क्यूब में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पे है? एक कॉर्नर से, कॉर्नर्स constituent particles arranged at corners. Types of unit cell. First is primitive या simple या basic unit cell. If constituent particles arranged only at corners, आप लोगों की डायरी में जब एक कमरा ले लो, कमरे में कितने कॉर्नर्स होते हैं? जो हमने देखा होगा, अपर फ्लोर पर 4 कॉर्नर्स एंड लोअर पर 4 कॉर्नर्स। 4 1 2 3 4, बॉटम पे भी देखोगे 1 2 3 4। जब constituent particle occurs only at corners तो called it primitive type of unit cell। ब्रैकेट में क्या लिख दिया? only at corners, and corners कितने होते हैं किसी क्यूब में? 8। नेक्स्ट इज face centered। face centered unit cell में क्या होता है कि constituent particles corners पर भी होते हैं और face centered constituent particle corner पे होंगे जो कि 8 होते हैं, एंड फेस सेंटर। तो आप किसी क्यूब में कितनी फेसेस होती हैं? 8 या 6 फेसेस होती हैं। अप डाउन लेफ्ट राइट एंड नेक्स्ट इज, तो 6 फेसेस आर फाउंड। इस केस में फिगर में देखिए, ये फेस हो गया, तो इस फेस का सेंटर ये हो गया। फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर। इस ब्लॉक का फेस सेंटर ये और पीछे वाले ब्लॉक का फेस सेंटर ये। तो 6 फेस सेंटर है। मींस आप फेस सेंटर के केस में क्या बोलोगे? constituent particles arranged at corners and also with फेस सेंटर। अगर कॉर्नर और फेस सेंटर दोनों पे पाए जाएंगे तो कॉर्नर फेस सेंटर। बॉडी सेंटर में क्या होता है? बॉडी सेंटर में constituent particles कॉर्नर्स पर भी होंगे, उसके साथ साथ बॉडी सेंटर पर होगा और इसी कमरे का सेंटर पॉइंट जहाँ पर 2 डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं। तो किसी भी क्यूब में एक ही सेंटर पॉइंट होता है। तो जब मैंने constituent particles arranged at corners and body center, बॉडी सेंटर किसी क्यूब में कितना होता है? 1, called it body center। साइड सेंटर, साइड सेंटर के केस में constituent particles arranged at corners होते हैं, and any one set of face center। कितने सेट्स होते हैं फेस सेंटर? देखो हमने बोला था फेस होती है 6, इसका मतलब कितने पेयर हो गए? 3 पेयर। 3 पेयर में से कोई एक पेयर आप चुनेंगे। तो सपोज दैट मैंने मान लिया ये, तो इस केस में आपको क्या देगा? constituent particles arranged at corner and any one set of face center, तो called it side center। अब फिर से इमेजिन कर सकते हो प्रिमिटिव या सिंपल में ओनली constituent particles lie at corner। कॉर्नर कितने होते हैं? 8। इन केस ऑफ फेस सेंटर constituent particles lie at corner जो कि 8 होते हैं, एंड फेस सेंटर जो कि कितने होते हैं? 6। नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर। constituent particles lie at corner and body center, एंड इस क्यूब में केवल एक ही बॉडी सेंटर होता है सेंटर में। नेक्स्ट इज साइड या एंड सेंटर। साइड या एंड सेंटर में क्या होता है कि कॉर्नर पर होंगे एंड एनी वन सेट ऑफ फेस सेंटर, एनी वन सेट ऑफ फेस सेंटर। क्लियर? साइड या एंड सेंटर। नेक्स्ट इज व्हाट इज क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम नेक्स्ट है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैंने बोला क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आपने बोला 4 पार्ट्स। फिर हो गया यूनिट सेल, मैंने बोला छोटा सा ब्लॉक किसी क्रिस्टल का जो छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है कॉल्ड इट यूनिट सेल व्हिच रिगाइड अगेन एंड अगेन। टाइप ऑफ यूनिट सेल, तो आपने बोला कि 4 टाइप्स 1 2 3 एंड 4 व्हिच आर ग्रुप्ड इनटू 2। अब नेक्स्ट इज क्रिस्टल सिस्टम। कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं? ओके, following 7 types of crystal system reported। अब following 7 types किस बेसिस पर नाम दिए गए हैं? बेसिस क्या है? क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन
क्राइटेरिया में आप ये देखें कि इसी ट्यूब में जो एज होता है जहाँ पे 3 लाइनें एक दूसरे को टच करती हैं, ये एंड ये, जिस पॉइंट पे 3 लाइनें एक दूसरे को टच करती है उसको हम बोलते हैं एज। अब बोले इसमें कितने पॉइंट्स हैं, ये हो गया, ये, इन तीनों को आप माने ए बी सी, तो ए बी सी क्या है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज अल्फा बीटा गामा। आप इमेजिन करें कि ये वाला एंगल क्या करेगा, अल्फा बीटा एंड गामा। तो ए बी सी क्या है, अल्फा बीटा गामा क्या है, क्लियर हो गया। अब इन्होंने कहा एक ऐसा ट्यूब जिसमें ए बी सी लेंथ विड्थ हाइट तीनों अगर इक्वल हो और अल्फा बीटा गामा का एंगल 90 हो, इस टाइप का क्रिस्टल सिस्टम ड्रा होगा क्यूबिक टाइप। और एग्जांपल उसका क्या है, NaCl। इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि इसमें NaCl आपको पढ़ना है, इसलिए इसमें NaCl लिख दिया। क्लियर हो गया। तो क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ ABC एंड एंगल ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो इफ ABC, अब बोर्ड में क्वेश्चन क्या आता है, बोर्ड में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इफ नेम द क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम का नाम बताइए। इफ A = B = C एंड अल्फा = बीटा = गामा विच इज 90, ABC बराबर है अल्फा बीटा गामा 90 है, तो किस टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होगा, आपको क्या बताना है, क्यूबिक। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या किया, A = B ≠ C, अल्फा बीटा गामा 90 but gamma 120। what type of crystal system shown by this hexagonal, ये हो गया। अब बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि क्यूबिक मींस ये लेंथ विड्थ हाइट इक्वल है, अल्फा बीटा गामा 90 है, तो ये क्यूबिक हो गया। NaCl क्यूबिक टाइप का स्ट्रक्चर है। अब इस ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ P फॉर प्रिमिटिव, B फॉर बॉडी सेंटर्ड एंड F फॉर फेस सेंटर्ड। मींस ये वर्ड्स जो लिए गए हैं वो यहाँ से लिए गए हैं। अब यहाँ पे सुनिए, क्यूबिक टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में, क्यूबिक टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में कितने टाइप की यूनिट्स होती हैं, ये क्या आपने लिखा था, टाइप ऑफ यूनिट्स है। तो क्यूबिक टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में कितने टाइप की यूनिट्स होती हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। इन केस ऑफ टेट्रागोनल ओनली प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरॉम्बिक में R टाइप्स मतलब 4, प्रिमिटिव, फेस, बॉडी, साइड। नेक्स्ट इज rhombohedral, इसमें ओनली प्रिमिटिव एंड साइड सेंटर्ड, प्रिमिटिव। अब आता है कि ये भी हो सकता है कि कैसे पूछा जाए, नेम द क्रिस्टल सिस्टम इन विच R टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम यूनिट सेल्स आर फाउंड। ऐसे क्रिस्टल सिस्टम का नाम बताओ जिसमें चारों प्रकार की यूनिट से पाई जाती हैं। तो कौन निकला, ऑर्थोरॉम्बिक। तो पहला क्वेश्चन मैंने यही कहा यहाँ से, ये आपको दे दिया, ये बताओ। दूसरा क्वेश्चन मैंने कह दिया कि कौन सा ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें R टाइप ऑफ यूनिट सेल्स पाए जाते हैं। ओके, तो ये क्या लिखा, क्लियर हो गया। These were taken from here. Next is various lattices. There are 14 possible 3D lattices. 14 possible 3D lattices. अब ये 14 वर्ड कहाँ से आ रहे हैं? ओके, अब हम जरा इन वर्ड्स को काउंट करें। 1 2 3 4 5, इसमें मैंने बोला था 4, तो 1 2 3 4 5 5 4 9 10 11 12 13 14, कितने स्ट्रक्चर बने, 14। तो ये जो 14 पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, वेरियस लैटिसेस। तो अगर हम 3D में कोई क्रिस्टल बनाए तो कितने टाइप के क्रिस्टल बन सकते हैं, 14। ये 14 क्या मैंने काउंट करके दिखा दिया। तो क्लियर हो गया ना कि ये हेडिंग सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। एंड नेक्स्ट बच्चों, इससे मेथड सॉल्व होते हैं, यानी हम जेड कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज जेड। लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। इसी यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको कैलकुलेट करना जेड कहलाता है। तो आपने पढ़ा था यहाँ कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 4, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, साइड सेंटर्ड। अब प्रिमिटिव में मैंने क्या बोला था आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइज ओनली एट कॉर्नर
बॉडी सेंटर में आपने बोला था कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर, तो ये लिख दिया मैंने कॉर्नर, और देखो बॉडी सेंटर में 1, फेस सेंटर पे तो है नहीं। फेस सेंटर के केस में क्या होगा, कॉर्नर में होंगे और फेस सेंटर में होंगे। फेस सेंटर कितने होते हैं, 6। साइड या इन सेंटर में मैंने क्या बोला था, कॉर्नर में होंगे तो 8 हो गया। लेकिन मैंने बोला था एनी वन सेट ऑफ फेस सेंटर, तो बताओ 6 फेसेस थे, तो एनी वन सेट लोगे तो उसमें कितनी फेसेस आएंगी, 2। ये टेबल क्लियर हो गई। इसमें ओनली कॉर्नर 8, बॉडी सेंटर में कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर, फेस सेंटर में कॉर्नर एंड फेस सेंटर, साइड में एनी वन फेस सेंटर दैट इज 2 फेसेस एंड 8 कॉर्नर। अब इसी कॉर्नर को अगर हम देखें तो एक कॉर्नर 8 क्यूब से जुड़ा होता है, तो इसका मतलब इसको हम किससे डिवाइड करें, 1/8। तो 8 × 1/8 क्यों किया, क्योंकि किसी भी क्यूब का जो कॉर्नर होता है वो 1/8 पोर्शन होता है, यानी एक कॉर्नर 8 क्यूब से जुड़ा हो सकता है। इसी तरह एक फेस, मान लीजिए दीवार क्या फेस है, अब इसमें कितने हो सकते हैं, कितने क्यूब से जुड़ा हो सकता है, एक तो ये कमरा हो गया, एक इसके बगल वाला, इसीलिए इसको आप किससे डिवाइड किए हैं, 1/2 से। तो फेस हमेशा 2 से शेयर करते हैं, कॉर्नर हमेशा 8 से, इसलिए 8 × 1/8 किया और इसमें 1/2 किया। अब 8 × 8 करके कितना है, 1, यहाँ पे 2 3 जा 6 एंड अब बच्चों क्या है कि इसमें जो सारे पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं 1 0 0 दैट इज 1 1 0 1, यानी 1 और 1 कितने हो गए, 2। इसमें 1 3 3 1 कितना हो गया, 4। इसमें कितना होगा, 1 and 1 दैट इज 2। ओके, तो इससे आपको हो सकता है 1 या 2 मार्क्स, 2 या 3 मार्क्स क्वेश्चन अटेंड हो सकते हैं। थैंक यू।